हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिंपल कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। बट बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ दिस अनअकैडमी यूपीएससी चैम्पियनशिप 2.0। सो ये क्या है? इट इज़ अ ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़। सो अगर आप यूपीएससी की प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? यू कैन विन अ चांस टू मीट द यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप। ओके, सो it is a well known fact that less than 40 days are left, so complete your preparation for the UPSC CSE with the Unacademy. So why to choose Unacademy? Because it is the one subscription and unlimited benefits. Okay, you can learn live from the comfort of your home, unlimited access to the all courses, top educators of the India on the one platform, exhaustive coverage of the syllabus, regular doubt clearing sessions, live test series, study material in the PDF format. All that you will be need, it will be provided here on the Unacademy application. So just hurry up. One stop solution for the complete UPSC CSE preparation. Okay. Why is it so? Because the structured batches, the top educators batches in the bilingual and Hindi or English as per your preference. Late night as well as the 2-year batches are also available. 100% syllabus coverage guarantee, vast range of the optionals, prelims test series with the evaluation, mains test series with the evaluation, dedicated doubt clearing classes, then daily current affairs practice, essay and the answer writing practice, performance analysis, sectional quizzes, interview preparation. It will be provided through this one platform. So UPSC CSE complete preparation batch courses, here are the few batches which are started recently. Mission UPSC CSE 2021 bilingual GS batch course. So what all the benefits you will be get in these batches are like full year batch course, full syllabus coverage, top educators, prelims and mains test series with the analysis, PDF study material, dedicated doubt clearing sessions, which is a very important, and also you can get the interview preparations through this platform. Okay, so it is the best chance for you guys. सो लक्ष्य यूपीएससी सीएसई 2021 का भी बैच है। अगर कोई हिंदी मीडियम में अपनी प्रिपरेशन करना चाहे तो वो इसे भी ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद सिर्फ इंग्लिश में करनी हो तो वो भी है एक बैच, और अगर कोई 2022 में प्लान कर रहा है तो उसकी भी एक बैच है। सो सब्सक्राइब नाउ and get the 10% extra off. So for getting it, you can simply use the simple YT promo code. Okay, so here it is the process. When you will be download the application, you will be get this get subscription option. Okay, and when you click for it, suppose you are choosing the 24 months subscription. So when you go for the proceed to payment, simply apply our this coupon code simple YT, you will be get 10% off. Okay, so 64,000 था पहले, अभी 10% ऑफ होकर आपको आ जाएगा 57,600। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के यूट्यूब लेक्चर के वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, इट इज़ टोटली फ्री। एवरीवन शुड ट्राई सो दैट आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि आपका करंट अफेयर्स कितना अच्छा है। हियर आर द सम चैनल्स जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है और टेलीग्राम पे भी है। अगर आप ये चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। सो हरी अप एंड लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन टुडे। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया है कि राम स्पेंड्स द 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन द हाउस रेंट, 10% ऑफ द रिमेनिंग इज स्पेंड्स ऑन द ट्रैवल, 16^2/3% of the remaining spends on the food, and remaining is saved. Okay, if he saves rupees 2250, then find the amount he spends on the food. Okay, सबसे पहले क्या दिया है इसमें कि अलग अलग परसेंटेज में उसका जो सैलरी ब्रेकअप दिया हुआ है हमें। सबसे पहले कुछ दिया नहीं है तो सैलरी को सबसे पहले सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 100 ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सपोज़ राम की जो सैलरी है वो 100 है। उसके बाद में हमें क्या दिया है कि उसमें से वो 40% ऑफ इस सैलरी ऑन द हाउस रेंट। सो 100 का 40% जो है वो हाउस रेंट पे वो खर्च करता है। सो कितना बचेगा, 60। फिर क्या दिया है उसने कि जो बचता है 60%, उसमें से जो भी 10% है वो ट्रैवल पे वो स्पेंड करता है।
सो इसका 10% मतलब क्या आ जाएगा, 60 का 10% 6। वो ट्रैवल पे वो अगर वो स्पेंड कर देता है सो कितना बचेगा हमारे पास, 54। उसके बाद क्या दिया है, 16^2/3, तो मतलब क्या हो जाएगा, और वो परसेंटेज है, सो 50/3। और परसेंटेज को अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इंटू 1/100 करके, सो आ जाएगा 1/6। सो 1/6 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9। सो ये जो 9 है वो किस पे खर्च करता है, सो फूड पे। जो 9 आया हमारा वो फूड पे खर्च करता है, तो बाकी कितना बचेगा, 45% बाकी बचेगा। अभी क्या दिया है हमें, इफ़ ही सेव्स ₹2250 2250 रुपीज़, सो फाइंड द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन द फूड। अभी क्या हमें दिया है कि जो 45% है उसकी वैल्यू हमें दे दी है कि 2250। तो हमें क्या फाइंड करना है कि फूड पे उसने कितना स्पेंड किया है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया है कि भाई फूड पे तो जो उसने स्पेंड किया है वो है 9%, बिकॉज इसका हमने निकाल दिया है, तो हमें पता चल गया है कि फूड पे उसने 9% स्पेंड किया है। तो बस हमें 9% की वैल्यू ही फाइंड करनी है। सिंपल इक्वेशन में अभी आप जैसे ही वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे 4 5 0। सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है कि 100 लेके ही आपको करना है, और जैसे जैसे मतलब ब्रेकअप करते जाओगे सैलरी का, वैसे वैसे ही आपका आंसर बनता जाएगा। यहाँ पे किसी का भी अगर वैल्यू आपको दे दिया, सपोज ट्रैवल की वैल्यू दे दी होती आपको, तो आपको पता चलता है कि भाई 6% की वैल्यू दी है। और अगर 100% की फाइंड करने को बोले, या फिर या कितनी बचती है, या फिर हाउस पे कितना उसने स्पेंड किया है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हो। बस इसको कैसे ब्रेकअप करना है वही आपको सीखना है इस एग्जाम्पल में। बाकी का सब कैलकुलेशन तो सिंपल ही आएगा इसमें। ठीक है, चलो मूव फॉरवर्ड। In a college, there are 1800 students. Okay, last day, except 4% of the boys, all the students were present in the college. Today, except 5% of the girls, all the students are present in the college. But in both the days, number of the students present in the college were same. So find the number of the girls in the college. चलो इसमें अभी क्या दिया है, अगर हम इसका सही से पढ़े धीरे धीरे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक कॉलेज है, उसमें मतलब टोटल स्टूडेंट्स 1800 है। तो उसमें कुछ बॉयज़ होंगे 1800 में, और कुछ गर्ल्स होगी, और ये दोनों मिलके हमारा क्या होता है 1800। तो हमने लिख दिया। लास्ट डे मतलब आज का दिन है, उससे एक दिन पहले का 4% ऑफ द बॉयज़, एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज़, ऑल द स्टूडेंट्स वेर प्रेजेंट इन द कॉलेज। ओके, मतलब 4% बॉय एब्सेंट रहता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई 96 डिवाइडेड बाय 100 बॉयज़ प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा सपोज, क्योंकि हमने क्या किया कि भाई बॉयज़ थे, उनके 4% एब्सेंट थे, तो हमने ये लिख दिया कि भाई 4% एब्सेंट है। तो सिंपल यही है, सिंप्लीफिकेशन अगर आप दोगे तो यही आ जाएगा हमारा 96 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बॉयज़ प्रेजेंट थे, और उनके सिवा सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो मतलब इसका हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो भी गर्ल्स थी वो सारी की सारी प्रेजेंट है इस लेक्चर में, मतलब इस लास्ट डे स्कूल में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके आगे क्या दिया है कि टुडे एक्सेप्ट द 5% ऑफ द गर्ल्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर द प्रेजेंट इन द कॉलेज। आज के दिन क्या दिया है कि भाई गर्ल्स हैं, उनके जो 5% है वो ही एब्सेंट है। सो 95 गर्ल्स प्रेजेंट होगी, और बाकी के सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। उसका मतलब हो गया है कि सारे के सारे बॉयज़ जो है वो तो आए ही है। फिर हमें क्या दिया है, बट इन द बोथ द डेज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द कॉलेज वेर सेम। सो ये दोनों जो है वो इक्वली दे दिया है हमें। तो बस अभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कैसे करते हैं वो, यहाँ पे हम लिख देते हैं 96 डिवाइडेड बाई 100, बॉयज़ का हमने बी लिख दिया, गर्ल्स का जी लिख दिया, फिर यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे 95 डिवाइडेड बाई 100 इंटू जी। सो अभी ये क्या जाएगा, ये भी यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। सो 5g डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 4b डिवाइडेड बाई 100। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई b बराबर इज इक्वल्स टू 4/5 आएगा। सो b डिवाइडेड बाई g इज इक्वल्स टू 5/4 आ जाएगा। अभी हमें क्या पूछा गया है, देन फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द कॉलेज। गर्ल का रेशियो हमें पता है 4 है,
तो अगर रेशियो के मेथड से हम फाइंड करें तो फॉर टोटल में से कितना हुआ है इन दोनों का 9, सो उसे हमने नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, और टोटल है हमारा 1800। सो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 800 जो है वो नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द कॉलेज है। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, दो इक्वेशन बना दी है हमने, फिर दोनों को कंपेयर कर दिया है और सीधा हमें आंसर ही मिल गया है। सबसे पहले हमें क्या मिल गया है कि भाई बॉयज़ डिवाइडेड बाय गर्ल्स का हमें रेशियो मिल गया है। फिर हमें पता चल गया है कि भाई जो गर्ल्स है, अगर 5 बॉयज़ हैं तो 4 गर्ल्स हैं। सो हम ये रेशियो की मेथड से कर दिया कि भाई 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1800, तो सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। A book contains the 30 pages, 25 lines on the each page and 35 characters on the each line. If this content is written in any other notebook that contains the 30 lines and 28 characters per line, then what percentage will be the higher than the previous pages on the number of the pages required? Okay, इसमें क्या दिया गया है, जो पार्ट 1 है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल को पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। इसमें क्या है, कंटेंट तो सेम ही रहेगा दोनों में, दो अलग अलग टाइप की बुक बनाते हैं। इसमें क्या है भाई, पेजेस है सबसे पहले, फिर दूसरा क्या दिया है हमें, लाइंस दी है, हमने लिख दिया लाइंस। थर्ड क्या हमें दिया है, कैरेक्टर्स, हमने लिख दिया कैर। अभी क्या दिया है कि भाई जो बुक 1 है उसके पेजेस है तो 30, हमने लिख दिया 30। फिर लाइंस क्या दिया है इन्होंने, 25 दिया है। कैरेक्टर्स क्या दिया है हमें, 35। फिर अभी पार्ट 2 में जाते हैं, उन्होंने क्या दिया है कि इफ़ दिस कंटेंट इज़ रिटन इन द एनी अदर नोटबुक दैट कंटेन्स 30 लाइन्स एंड 28 कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमने लाइन दे दी है 30, पेजेस हमने नहीं दिया है, और जो कैरेक्टर्स है वो 28 दे दिए। तो अभी ये देखो, अगर ये कंटेंट सेम है तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो तो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि एक पेज होता है, पेज के अंदर लाइन होती है और लाइन के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो कंटेंट है हमारा, इससे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो कंटेंट है और ये जो कंटेंट है दोनों तो सेम ही है। तो अगर हम ये इक्वेशन से इसको सॉल्व करें तो हमारा x मिल जाएगा हमें। फिर हमें क्या फाइंड करना है कि भाई जो है वो कितने परसेंटेज हायर है। तो उसके पहले हमें ये x फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम परसेंटेज की मेथड यूज़ करके आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया, चलो ये 30 गए दोनों। फिर x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 28 आ जाएगा, 35 है सॉरी यहाँ पे। सो 25 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 28, 7 से यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। 25 इंटू 5 मतलब 125 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 यहाँ पे आ जाएगा 3, देन 1, okay, so then 10, then 2 and then 20, then 5. okay, so 31.25 पेजेस हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया है कि भाई 31.25 पेजेस यूज़ होंगे। तो अभी हमें क्या करना है कि भाई वो प्रीवियस पेजेस से इससे वो कितना परसेंटेज ज़्यादा बढ़ा है। तो बस कुछ नहीं, अभी तो सिंपल ही है कि भाई जो 30 था उससे 1.25 ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो हमें सीधा परसेंटेज मिल जाएगा। सो 100 इंटू 1.25 मतलब 125 डिवाइडेड बाय 30। अभी डिवाइडेड बाय 30 हमें करना है तो 3 से डिवाइड करके जो भी होगा एक पॉइंट हम कर सकते हैं, तो वो इजी रहेगा। सो 3 से यहाँ पे आ जाएगा 4, देन 5, सो 1, देन 20 हो जाएगा तो 6, देन 20 रहेगा तो 6, और अभी इसको 10 से भी डिवाइड करना है तो 0.166%। सो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हो गए आपके परसेंटेज के, उसमें क्या दिया होगा कि भाई 2 वैल्यूज़ दे दी होंगी और उनको इस टाइप से हमें एक फाइनल वैल्यू पानी होती है, और उसके बाद फिर हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। चलो एक आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 15,000 कैंडिडेट्स, 35% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन द मैथमेटिक्स एंड 38% फेल्ड इन द इंग्लिश। If the 28% passed in the both subject, then how many students failed in the both subjects? ओके, सो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें क्या दिया है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स दे दिया हमें। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितना है एग्ज़ाम में, तो वो हमने लिख दिया, और वो है हमारा 15,000। फिर उसके बाद इन्होंने क्या दी इन्फॉर्मेशन हमें, एक मैथ्स है और दूसरा इंग्लिश है। इन दोनों में
कितने परसेंटेज पास है स्टूडेंट्स और कितने फेल है वो हमने दिया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं पास और यहाँ पे लिख देते हैं फेल। फिर मैथ्स में क्या दिया है उन्होंने 35% फेल्ड इन द मैथमेटिक्स। अगर 35% फेल है तो 65 पास होंगे। ठीक है, चलो हमने लिख दिया। फिर क्या दिया है इन द इंग्लिश 38% फेल। चलो यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे 62 आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर अभी इन्होंने क्या दिया कि भाई 28% जो है वो बोथ सब्जेक्ट्स में पास है, बोथ सब्जेक्ट्स में पास है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि भाई बोथ सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं उनकी क्या है, मतलब जो भी बंदे बोथ सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं वो क्या है। तो अगर हम इन दोनों का अगर सम कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि 127 हो जाता है। बट अगर ये क्या हो गया हमारा 100 से ज़्यादा हो गया 127, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें कुछ नंबर एक है जो मतलब 2 बार आ रहा है, एक नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है अगर मैं आपको ये वेन डायग्राम से बताऊँ तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा। सपोज़ ये मैथ्स में पास कैंडिडेट्स है और सपोज़ ये इंग्लिश में पास कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो मैथ्स में इन्होंने क्या दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ द 65, इंग्लिश में क्या दिया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ द 62। बट 28 क्या इन दोनों के बीच में है, मतलब दोनों में पास है ये लोग। तो ये क्या होगा कि भाई 28 जो है वो 65 के भी काउंट में आ जाएगा और अगर 62 में भी आ जाएगा। तो मतलब अगर हमें सिर्फ मैथ्स का निकालना हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि भाई 65 में से अगर 28 निकाल दो तो सिर्फ मैथ्स का आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 32 यहाँ पे। और 62 में से अगर 28 निकाल दो तो ऐसे बंदे मिल जाएंगे कि जो सिर्फ इंग्लिश में ही पास हुए होंगे। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 और 16 मतलब 34। और अगर ये तीनों को हम मिला दें तो हमारा टोटल हो जाएगा 99। इसका मतलब क्या है कि 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो मैथ्स में पास है या तो इंग्लिश में पास है और दोनों में पास है। तो मतलब 1% स्टूडेंट्स ऐसे बचे हैं कि भाई जो दोनों में फेल है। तो मतलब 1% अगर यहाँ पे 15,000 दिया है हमें तो 15,000 का अगर हम 1% निकाल देंगे तो हमें वो मिल जाएगा कि भाई दोनों में फेल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमें पता चल गया कि भाई 150। सो 150 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको ये मेथड अभी थोड़ा लंबा लगे तो आप अगर 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो नंबर ऑफ द पास कैंडिडेट्स होते हैं वो 2 बार आते हैं। तो अगर सीधा ही उसको हम यहाँ से 28 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा 99%। बट ये करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट, इसलिए मैंने समझा दिया है। ठीक है, चलो अभी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A sales executive gets a commission on the total sales at the 8%. If the sale is exceeded rupees 10,000, he gets an additional commission as a bonus of the 4% on the excess of the sales over rupees 10,000. If he gets the total commission of the rupees 950, then how much sell he did? इसमें क्या दिया गया है कि भाई एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको 8% का कमीशन मिल रहा है। कब तक? जबकि वो 10,000 तक का सेल करता है तब तक। उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही उसकी सेलिंग 10,000 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको 4% एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसका मतलब क्या होगा कि भाई जो 10,000 तक की जब वो सेलिंग करता है तो उसको जो मिलता है वो जो कमीशन है वो 8% है। बट जैसे ही वो उसके प्लस हो जाता है 10,000 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें 4% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उसका टोटल कमीशन क्या हो जाएगा 12%। चलो अभी हमें क्या दिया है कि भाई जो उसको बोनस मिल रहा है मतलब कमीशन मिल रहा है टोटल वो 950 रुपीज़ है। देन हाउ मच सेल ही डिड, तो उसने कितना सेल किया होगा। चलो तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, भाई जो 10,000 है उसका हम 8% निकाल देते हैं। 10,000 है उसका 8% निकाल देते हैं तो क्या आएगा हमारा 800। तो मतलब जो फर्स्ट ये 950 है उसमें से इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जो 800 होगा उसमें तो उसको 8% ही जो है वो मिला होगा कमीशन, और बाकी का जो 150 है उसमें उसको 12% कमीशन मिला होगा क्योंकि वो 10,000 से बढ़ गया। ठीक है, 10,000 था तो हमने 10,000 का 8% हमने निकाल दिया। तो हमें पता चल गया कि भाई जो फर्स्ट 800 रुपीज़ है उसमें तो उसको 8% ही कमीशन मिला है, बट उसके बाद उसका जो कमीशन है वो 12% हो गया है। बस तो अभी तो हमारा ये सिंपल हो गया है। 12% की वैल्यू जो है हमें वो 150 दे दी है तो 100% की वैल्यू कितनी रहेगी ये हम फाइंड कर देते हैं। चलो 100 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 120, सो ये गया 3 से 4 3 से 5, यहाँ पे आ जाएगा 25 मतलब 125। ठीक है,
ये आ गया हमारा 125 और क्या है, एक ज़ीरो भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 150 था और यहाँ पे 12 ही है, सो ये ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। सो टोटल हमारा क्या हो जाएगा कि भाई 10,000 था और उसके ऊपर उसने 1,250 का सेल और करवाया है, तो ये आ गया हमारा आंसर 11,250। चलो अभी क्या दिया है इसमें, प्रदीप, रूबी एंड दिनेश इन्वेस्टेड इन अ सर्टेन स्कीम। 5/9 of the Pradeep's investment is equal to the 25% of the Ruby's investment, and Ruby's investment is equal to the 1/4 of the Dinesh investment. The value of the Dinesh investment is given rupees 29,600. Then what is the 60% of the Pradeep's investment? चलो बहुत ही लंबा चौड़ा दिया है इसका। चलो सबसे पहले क्या दिया है कि भाई 5/9 ऑफ द प्रदीप्स इनकम इज इक्वल टू द 25% ऑफ द रूबीज इनकम। चलो इसको हम लिख देते हैं 5/9 इंटू प्रदीप इज इक्वल्स टू 25% ऑफ द रूबी। 25% का हमें पता है कि भाई 1/4 हो जाएगा। चलो ये हमारा ख़त्म हो गया। फिर दूसरा हमें क्या दिया है, रूबीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द 1/4 ऑफ द दिनेश इन्वेस्टमेंट। जो रूबी का इन्वेस्टमेंट है वो दिनेश के इन्वेस्टमेंट से 1/4 है। चलो हमने लिख दिया। फिर हमें क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द दिनेश इन्वेस्टमेंट इज़ रुपीज़ 29,600। चलो ये तो अभी सिंपल हो गया, 29,600। यहाँ पे आ जाएगा 7, 16 मतलब 400। रूबी का हमें मिल गया 7400। तो अभी हमें प्रदीप का भी मिल जाएगा। प्रदीप का क्या रहेगा, 9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू आर, मतलब 9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7,400। सो ये 0 0 गया और यहाँ पे 2 से आ गया 3 7 एंड 0। सो जो प्रदीप का था वो 9 इंटू 370 आ गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है कि भाई 60% ऑफ द प्रदीप्स इन्वेस्टमेंट क्या हो गया। ये पी हमें मिल गया, अभी हमें पी का भी 60% फाइंड करना है, तो हमने सीधा ये लिख दिया। और ये तो हमें पता ही है 9 इंटू 370, सो ये 0 0 गया। देन यहाँ पे 6 है, सो यहाँ पे 3 पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 से 3 आ गया। देन 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 17 मतलब 8 एंड 1 मतलब 5। सो 185 इंटू 3 इंटू 10 आ जाएगा। सो 185 इंटू 3 हम कर देते हैं 15 1, then 8 and 3 11 1 and then 4 1 5 0। सो ये आ गया हमारा आंसर। In an IPL, Lungi Angidi got the 20% more wickets than the Sandeep Lamichhane, and Sandeep Lamichhane got the 20% less than the Murugan Ashwin, and Murugan Ashwin got 25% more than the Nitish Rana. If the Lungi Angidi got the 36 wickets out of the 150, then find the percentage of the wickets of the Nitish Rana। ठीक है चलो बहुत ही लंबा है, लिख देते हैं इसको। सबसे पहले लुंगी एंगेडी का दिया है हमें, चलो यहाँ पे हमने लुंगी एंगेडी का दे दिया, लिख दिया। फिर क्या हमें दिया है कि भाई जो लुंगी एंगेडी की विकेट्स है वो +20 है, किससे, तो संदीप से, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे एरो रहेगा। देन संदीप का जो विकेट्स है वो 20% लेस देन द मुरुगन अश्विन है, तो हमने यहाँ पे -20 लिख दिया। बट यहाँ पे कौन है, मुरुगन अश्विन, हम उसका ए लिख देते हैं। एंड मुरुगन अश्विन गॉट द 25% मोर विकेट्स देन द नीतीश राणा। यहाँ पे हमने लिख दिया नीतीश राणा। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द विकेट्स ऑफ द नीतीश राणा, मतलब नीतीश राणा की विकेट्स फाइंड करनी है और टोटल जो 150 में से है उसकी विकेट्स वो कितनी होती है वो भी हमें फाइंड करना है। और जो लुंगी एंगेडी है उसकी विकेट्स हमें दे दी है 36। चलो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड सिखा देता हूँ। सपोज किसी ने वो फर्स्ट वाला हमारा वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो उसमें मैंने दिया था ए बी और सी का। उसमें क्या दिया था कि भाई जो बी की इनकम थी वो ए की इनकम थी वो बी की इनकम से 40% ज़्यादा थी, और जो बी की इनकम थी वो सी की इनकम से 20% कम थी। तो उसमें हमने क्या किया था कि भाई इसको 100 हमने गैस कर लिया था, फिर ये हमें 80 मिला था, फिर 80 का हमने 40% फाइंड किया और उसको ऐड किया तो मतलब 32 और हमें 112 मिल गया था। फिर हमने उसको 100 से कंपेयर किया था, फिर हमें आंसर मिला था 12%।
बट अगर इसको हमें एक और सिंपल मेथड से ट्राई करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। वो मेथड क्या है, तो सपोज़ ये मेथड आपने सबने से देखी होगी कि भाई कोई एक आर्टिकल है, उसकी कीमत में सबसे पहले क्या करता हूँ कि भाई 30% बढ़ा देता हूँ और फिर उसकी कीमत में 10% कम कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई उसका एक सिंपल है, यही हमें याद रखना होता है कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो इसको मतलब ये इक्वेशन में डाल के देखते हैं। चलो x हमारा क्या है 30, फिर हमने क्या किया 10% कम कर दिया तो हमने यहाँ पे -10 लिख दिया। फिर हमें क्या पता चला कि भाई 30 इंटू -10 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया कि भाई 20 - 3 इज इक्वल्स टू 17%। और ये मतलब प्लस में आया तो मतलब 17% बढ़ गया है हमारा। अगर इसको आप ये लंबी मेथड से करना चाहो तो भी आप कर सकते हो कि भाई जो 100 था पहले उसका 30% बढ़ गया तो 130 हो गया, उसका 10% कम हुआ तो -13 होगा तो 117 होगा। बट इससे अच्छा है अगर आप ये इक्वेशन याद रख दो कि मतलब जब भी ऐसे ही मतलब एक ही कीमत पे वो मतलब बढ़ता है और कम होता है तो यही हमें याद रखना होता है, यही इक्वेशन x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमने क्यों करवाया कि मतलब ये इक्वेशन जो है वो ऐसे में भी काम आता है। मतलब आपको ये 4-5 वैल्यू दे दी हो कि भाई ए जो है वो बी से इतना ज़्यादा है, बी सी से इतना ज़्यादा है, सी डी से इतना ज़्यादा है, तो ई जो है वो ई से डी से इतना कम है, तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए ये भी है एक मेथड, इसी के लिए मैंने आपको ये मेथड करवाई। इसमें अभी क्या हम कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई ये जो 40 है और यहाँ पे -20 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 40 - 20 प्लस 40 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। तो इसका आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 गया, -8 मतलब +12। तो ये इक्वेशन से अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी जो है वो स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने आपको करवाया। अभी ये भी क्यों करवाया कि भाई इसमें भी इसका यूज़ हो सकता है, बराबर। ऐसे ही मतलब इसमें क्या दिया है कि भाई तीनों 4-5 जितनी भी वैल्यू आपको दियो, बट वो सारी की सारी अगर कंपैरिजन में दियो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलो अभी हम ये जो हमारा इक्वेशन है इसको इस टाइप से करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये सारा क्लियर कर देते हैं। आई होप के जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा वो सबको क्लियर हो गया होगा। चलो तो अभी इसमें हम ये मेथड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो अभी देखते हैं। अभी ये जो जैसे था अभी हम चलो इसमें करते हैं कि भाई लुंगी एंगिडी है, उसकी जो 20% ज़्यादा है और ये जो है वो -20 है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ए और x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा क्या हो जाएगा कि भाई पहले +20 है, बाद में -20 प्लस 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा -4, क्योंकि ये 0 0 गया और ये तो 0 ही हो गया था, तो मतलब -4। तो इन दोनों का आंसर हमें मिल गया -4। अभी -4 और 25 का हमें करना पड़ेगा। तो इसमें क्या आएगा कि -4 प्लस 25 प्लस -4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हमारा 21 आ जाएगा, यहाँ पे 4 मतलब 1 -1 मतलब 20%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो लुंगी एंगिडी है वो 20% ज़्यादा है। तो किससे, मतलब नीतीश राणा से ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि भाई ये जो 120 है उसकी वैल्यू हमें पता है कि भाई 36 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। सो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये गया हमारा 3 मतलब 30। अभी हमें क्या फाइंड करने को बोला है कि भाई लुंगी एंगिडी फाइंड द परसेंटेज ऑफ द विकेट्स ऑफ द नीतीश राणा। अभी ये जो नीतीश राणा है उसकी परसेंटेज ऑफ द विकेट्स हमें फाइंड करनी है। अभी हमें पता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ द विकेट्स जो है वो 150 है, तो हमने ये लिख दिया 30, उसके नीचे 150 और 100। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, 3 से यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 से यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 से यहाँ पे 2। सो ये जो 20% है वो हमारा आंसर हो गया। ये हमें फाइनल आंसर में पूछा गया है कि भाई जो लुंगी एंगिडी है उसकी विकेट्स कितनी होगी, ठीक है। टोटल विकेट्स में से ये जो अगर 30 है तो वो 20% हो गई, क्योंकि हमें पता है कि भाई 150 है तो उसका 10% 15 और ये 30 है तो मतलब 10 + 10 मतलब 20% हो जाएगा। अगर आप को एक और सिंपल मेथड अगर इसमें करनी हो तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ताकि थोड़ी और ज़्यादा स्पीड बढ़ सके आपकी।
इस टाइप के एग्जांपल में। सो वो मैं अभी करवा देता हूँ आपको कि अभी इससे भी अगर ज़्यादा सॉर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। चलो ये सारा हम डिलीट कर देते हैं, ये गया हमारा। चलो इतने में हो जाएगा। अभी हमें क्या दिया है कि भाई जो 36 है लुंगी एंगेडी का वो हमें पता है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे +20 है ना, तो यहाँ पे हम सीधा यही लिख सकते हैं कि भाई 120 डिवाइडेड बाई 100। फिर यहाँ पे -20 है ना, तो हम यहाँ पे सीधा 18 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे +25 है ना, तो हम सीधा यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाई 100 भी लिख सकते हैं। उसके बाद भी हमें जो नीतीश राणा है उसकी वैल्यू हमें मिल सकती है विकेट्स की। चलो ये चला गया। फिर 25 पे यहाँ पे आएगा 5, 25 से यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 12 से यहाँ पे आ जाएगा 3, देन 5 इंटू 2 10, और 10 मतलब यहाँ से 0 गया। सो n, अगर ये इक्वेशन से भी आप करोगे, अगर आप पूरा समझ गए ये वाला, तो आपको ये इक्वेशन आसानी से समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले ये मेथड करवा दी और बाद में ये करवा दी। इससे भी अगर ये देखो आपका कितना इजी हो गया, मतलब सीधा आपको नीतीश राणा की विकेट ही मिल गई, और ये जो सारा हमारा स्टेप था वो कम हो गया इसमें। सो आप अगर ये मेथड ट्राई करोगे एग्ज़ाम में, मतलब इतना ज़्यादा दे दिया हो आपको, और अगर ये फर्स्ट की या लास्ट की वैल्यू दे दी हो, तो आप इस टाइप के इक्वेशन बना करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जब ऐसा कब कर सकते हैं कि भाई सबके जो भी होते हैं जितने कि यहाँ पे 4-5 वैल्यू दी है हमें, एल एस ए एन, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर इस टाइप का रिलेशन आपको मिलता है तो आप यही से फॉलो करोगे, इस टाइप का ही मतलब डायग्राम फॉलो करोगे, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। सो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है लेक्चर। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।